Hello students, magnetic effect of electric current today we will start. So far in standard 6 last year what you studied about magnet, what you know about magnet. Magnets are what? They attract certain substance और वो substance क्या है? Iron. So we studied about electricity and magnetism separately. However, अभी क्या करना है, हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म these are closely related, and how they are related, that we will study in this magnetic effect of electric current. To see the magnetic effect of current passing through a wire, what we have to do is we have to take 1.5 volt cell, two pieces of insulating wire, a small magnetic compass, and an insulation, that is a tape. What you have to do is strip the insulation from two ends of both the wire. दोनों वायर के साइड में आपको उसको अच्छा से ज्वाइन करना है इंसुलेशन पेपर से, जिसको हम सेलोटेप भी बोलते हैं. Then connect one end of the wire with the negative terminal and another end of the wire with the positive terminal. Now place the magnetic compass near the wire. Keep eye on the needle. Needle को आप देखते रहो magnetic compass का. Then and touch the free ends of the wire. तो वायर का जो फ्री एंड है, अदर एंड है, उसको आप टच करो. कनेक्ट टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. What you will observe when the wire is touched, जब भी वायर उसमें टच होता है, the needle of the magnetic compass get deflected. वो डिफ्लेक्ट होता है मतलब मूव करना स्टार्ट कर देता है. Why? Because current passes through the wire and it behaves like a magnet. Therefore, deflects the magnetic needle of the compass. Now comes the next topic is electromagnet. So what is the electromagnet? When we see this activity that current carrying conductor, जो current carrying conductor है वो किस तरह से act करता है? Like a magnet. So as a result it get deflect a magnetic needle, deflect करता है. So what is the electromagnet? Electromagnet is a device that acts like a magnet when an electric current is passed through it. तो electromagnet एक device है और वो कैसे act करता है? Like a magnet only. जब उसके अंदर से क्या pass करता है? Electric current passes through it. It loses its magnetic प्रॉपर्टी. जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो है वो भूल जाता है. इट लूजेज इट व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ. सो इन द प्लेस ऑफ अ सिंगल लूप ऑफ अ इलेक्ट्रिक वायर, एज इन द एक्टिविटी यू कैन सी, एक वायर है तो ठीक है. व्हेन वी वुड इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट बाय मेकिंग, और भी ज़्यादा वायर हम उसमें कनेक्ट कर देंगे. सो वी वुड फर्दर इंक्रीज इज बाय रैपिंग इट. तो रैप कर देंगे, एक रोल जैसा बना देंगे. सो द वायर around a piece of magnetic material is look like a soft iron. So you can see at the end of this section that generally electromagnet are used commonly, have a long insulating wire and wound tightly many times around the cylindrical core. So it is a piece of a soft iron and the core increases the strength of the electromagnet. तो जितना ज़्यादा उसका टर्न्स होगा उतना ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रांग बना के रखेंगे. Electromagnet, we get one thing in mind, that is solenoid. What is a solenoid? Solenoid is a long wire that has been wound many times in a tight coil around a hollow और अ सॉलिड कोर. या तो ये हॉलो रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, या तो उसके अंदर एक सॉलिड कोर रहेगा और उसके ऊपर वो वायर्स जो है वो वुंड किए होंगे. इट हैज़ अ सिलिंड्रिकल शेप एंड अ सोलोनॉइड एक्ट एज अ और यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. Now let us see the activity to make an electromagnet and show that it attracts iron. We have to take the same battery, 1.5 volt cell, an iron nail and a safety pin. Make sure that the safety pin should be stainless steel and a piece of wire. So now what you have to do is method. Take a piece of wire and strip of insulation from two ends. Wind the wire around the iron nail. तो वायर को क्या करना है आपको, नेल के अराउंड को उसको
वाइंड कर देना है, बाइंड करना है, ठीक है। देन कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर टू द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। दोनों टर्मिनल, कौन कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव में यू हैव टू कनेक्ट। दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। अब क्या करना है, ब्रिंग दिस क्लोज टू द सेफ्टी पिन। अब सेफ्टी पिन को उसके पास लाना है। सो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, you will observe that safety pin gets attracted to the iron nail. सेफ्टी पिन जो है आयरन नेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आ रहा है एज अ मैग्नेट। वाई, बिकॉज पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल wrapped around an iron piece and makes the iron piece, और आयरन पीस जो है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है आयरन में, तो ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, और इसलिए जब सेफ्टी पिन हम पास में रख रहे हैं तो इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेल। अंडरस्टूड? Let us make it a stronger magnetic effect due to more number of turns. तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए we will take the electromagnet depend on the number of turns of the wire, to the core and the amount of current. So in this figure what you see, the more number of turns, ज़्यादा number of turns है, और more will be the magnetic effect. जितना ज़्यादा number of turns होगा वायर का, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका magnetic effect होगा। So you can see in the figure the iron nail attracts more number of safety pins. तो हम एक से ज़्यादा भी सेफ्टी पिन को वो अट्रैक्ट कर सकता है अपने तरफ, क्योंकि उसके टर्न्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। Okay, now it is more powerful with the coil. What will happen if the current passing through the coil switched off? जब करंट अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तब क्या होगा, जैसे कि दोनों साइड से हम करंट को, दोनों साइड के बैटरी से हम वायर को इफ़ यू रिमूव, देन व्हाट विल हैपन, द आयरन पीस विल लूज देयर मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये आयरन का नेल है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट चला जाएगा। इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, अभी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, एंड दस विल नॉट अट्रैक्ट द सेफ्टी पिन। दोनों पिक्चर में क्या चीज़ कॉमन है, एक पिक्चर में एक ही पिन है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है तो ज़्यादा मैग्नेटिक नहीं हो पाता है, लेकिन दूसरे पिक्चर में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो वो मोर मैग्नेटिक हो जाता है, इसलिए एक से ज़्यादा हम सेफ्टी पिन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू मोर नंबर ऑफ टर्न्स, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। Let us see one more activity to find the behavior of an electromagnet when current is switched off. So in this activity we need what, an electromagnet, iron fillings, wire, cardboard and a piece of pencil. So take a electromagnet, then connect both the ends with the wire of the terminal of a pencil cell. Pencil cell मतलब जो बैटरी है, छोटा सा सेल। टेक अ कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकल सम ऑफ द आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स को आप स्प्रेड कर दो, आयरन के टुकड़े जो हैं, नाउ पाउडर जैसे होते हैं। नाउ ब्रिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट नियर टू द आयरन फिलिंग्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो है आयरन फिलिंग के सामने आप रखो। डू द फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या वो इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं। नाउ रिमूव द पेंसिल सेल, ये जो सेल है इसको आप हटा दो, बैटरी को हटा दो, सेल को हटा दो, तो क्या लगेगा आपको, द फीलिंग्स फॉल डाउन, सो दैट मीन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। क्यों, क्योंकि करंट अभी इसमें से हट गया है, रिमूव हो गया है। Electromagnet has various uses, wide range of use. It is used in electric motor, then telephones, washing machine, loudspeaker and electric bell. So we will study electric bell in detail and how electromagnet is used in this. ऐसे तो electromagnet हर एक चीज़ में है, लेकिन हम एक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक बेल, कि उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ कैसे होता है, कैसे वाइंडिंग्स करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल में। सो व्हाट डू यू नो व्हेन यू रीच योर फ्रेंड्स हाउस, आपको क्या लगता है हमको क्या करना चाहिए, यू नॉक द डोर और इफ देर इज़ अ बेल यू प्रेस द बेल और यू रिंग द डोर बेल। डू यू नो what makes the bell ring?
एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है दैट पुल्स अ स्ट्रिप ऑफ आयरन विच मेक्स द हैमर हिट द गोंग। वो वायर को पुल करते हैं और उसकी वजह से जो हैमर है उसमें लगा है दैट हिट्स द गोंग, जो वो गोल शेप का होता है उस पर जाके वो हिट करता है। सो स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन एंड वर्किंग वी विल स्टडी इन दिस। द फर्स्ट स्टेप, when you push the switch of the bell, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो करंट डायरेक्ट जाके कहाँ पे फ्लो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ फ्लो करता है। स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप एंड द हैमर अटैच टू द स्ट्रिप, जो स्ट्रिप के साथ अटैच है, हिट द गोंग, जो सर्कल वाला जो है वो गोंग है, मेकिंग इट अ रिंग, उसमें बजता है। When the soft iron strip gets attracted to the electromagnet, it no longer touches the screw. तो स्क्रू को वो टच नहीं किया, so and hence the current in the circuit is broken. सर्किट का ब्रोक हो गया। so जैसे ब्रोक हो गया मतलब क्या, स्विच्ड ऑफ हो गया। This turns off the electromagnet and it can no longer attract to the soft iron strip. Now in third step, the soft iron strip returns to its initial position, जो सेम जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी पोजीशन में आके वो रिटर्न हो जाता है, टचिंग द स्क्रू। उस स्क्रू को अभी वो टच कर रहा है। स्क्रू इज ए इंटरप्टर हेयर। सो दिस रिजल्ट इन द सर्किट बीइंग कंप्लीट। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया एंड करंट जो है वो वापस से फ्लो होना शुरू हो गया। आप देख सकते हो कि आयरन स्ट्रिप रिटर्न हो रहा है और वो इनिशियल पोजीशन को जो है वो फिर से टच कर रहा है, तो इसीलिए फिर से स्विच ऑन हो गया और जो है करंट वापस से वो करंट फ्लो करने। लेट्स रिमेंबर व्हाट वी हैव स्टडीड। वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फ्यूज is a safety device, a wire carrying current cord behaves like a magnet, electromagnets are used in cranes, motors, etc. In this chapter we studied. Now let us remember what we need to know the true and false. Current carrying conductor can deflect a magnetic compass. Yes, true. An electromagnet is based on the heating effect of electric current. No, it's false. It's magnetic effect. So answer is false. The strength of the electromagnet does not depend on the number of turns of the coil. F, false, because it does not. So an electromagnet exerts a greater magnetic force on a small iron piece. When the current is passed through, the switch is off, it will be on. So answer is false. One, in an electric bell, the hammer strikes the gong because the gong is magnetic. False. It is soft iron strip. Thank you students for watching my video. If you have any doubt, you can contact me. Thank you.